नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ममता की सरकार में मंत्री रहे। टीएमसी में ममता के काफी खासम खास बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमित शाह की मौजूदगी में मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। आधिकारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के कम से कम 10 विधायक बीजेपी में आ गए हैं और इन विधायकों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए। टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक बड़ी टूट टीएमसी में, न सिर्फ टीएमसी बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस के भी विधायक, और ये 10 विधायक हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले से है, टीएमसी को छोड़ चुके थे, उनके बीजेपी में आने की अटकलें थी, लेकिन सुबह से या यूं कहें कि कल रात से बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात के संकेत दे रहे थे कि वो बहुत बड़ी टूट होने जा रही है टीएमसी में। अब न सिर्फ टीएमसी बल्कि वाम दल और कांग्रेस के 10 विधायक कम से कम शामिल हुए। विद्यासागरेर माटी একদিকে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম লালমাটি, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর বালু মাটি, একদিকে খড়গপুর রেলনগরী, অন্যদিকে হলদিয়া শিল্পনগরী। আজকে এই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক কলেজিয়েট ময়দান অনেক ঘটনার সাক্ষী, অনেক বিপ্লবের সাক্ষী। সেই মাটিকে প্রণাম করে আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার, জোহার, সালাম জানিয়ে আমি দু চারটি কথা নিবেদন করব। এই বিরাট সভাতে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাবো সবার সঞ্চালক, সাংসদ, তরুণ নেতা, কুর্মী সমাজের প্রাণের নেতা যতীনময় মাহাতোকে। আমি শ্রদ্ধা জানাবো রাজ্য সভাপতি, মেদিনীপুরের সাংসদ, আজকের সভার সভাপতি এবং লোকপ্রিয় নেতা আমাদের সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়কে। আর আজকে যিনি আমাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম, সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন যিনি, তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন, তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনের। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপি চার্জে। 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিতজি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। আর সেই দর্শনে সুযোগ করে দিয়েছিলেন এখন উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের सिद्धार्थनाथ सिन्हा। मैं अमित जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी में मुझे जगह देने के लिए। আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। मैं जिस पार्टी में था, जिस पार्टी में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, उन पार्टी के सदस्य ने मुझे और मेरे बारे में कभी खोज नहीं लिया, लेकिन अमित जी ने मुझे फोन करके जरूर था। आज इस रैली में मुकुल रॉय भी हैं, जो हर वक्त मुझे ये कहते हैं रहे कि अगर आपका आत्मसम्मान आहत होता है तो आपको उस पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए।
मोर्चार यहाँ पे बाकी सब नेता एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी भी हैं। अर्जुन सिंह जिसके खिलाफ ऐसे बहुत सारे केसेस इस सरकार ने लगाया है। अर्जुन सिंह माथा নত करेनी, लेकिन अर्जुन सिंह ने भी कभी अपना सर नहीं झुकाया। अभिनंदन জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো। আপনারা मैं लॉकेट चैटर्जी को भी अभिनंदन जनाना चाहता আমি তো हूँ। সবে শুরু করলাম। 24 ये तो ঘন্টা सिर्फ एक शुरुआत है, मैंने अभी शुरू किया है। পাড়ায় পাড়ায় পাবেন। আশ্বস্ত করছি আপনাদের সমিত দাসকে। मैं आज इस सभा से ये कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हर एक बूथ में मैं बीजेपी का संगठन अगड़ा खड़ूंगा। বিজেপিতে আসেনি তৃণমূল ছেড়ে। শুভেন্দু আপনাদের উপরে খবরদারি করবে না। শুভেন্দু কর্মী হিসেবে যা পার্টি নির্দেশ দেবে তাই পালন করবে। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी जो निर्देश मिलेगा पार्टी से वही निर्देश वो पालन करेगा। ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। मैं खुद আমাকে বিশ্বাস छात्र राजनीति से इस जगह पे पहुंचा हूँ, सीढ़ी से उठ के राजनीति करके आया हूँ। তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারত রত্ন তার আশীর্বাদ जब না পেলে तृणमूल বাড়ি कांग्रेस থেকে বেরোতে प्रतिष्ठा हुआ था আপনারা বলুন 98 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी खुद ममता बनर्जी के घर में आए थे। কার শরিক ছিল এনডিএর পার্টনার? 98 तृणमूल লোকসভা खुद নির্বাচনে एक बार एनडीए का पार्टनर भी 11 था। জোটে জিতেছিল। রাহুল সিনহা আছেন, রাহুলদা বলতে পারবেন জোট ছিল না। 99তে আমি পার্টি জয়েন করেছিলাম, আমার পুরনো পার্টি তৃণমূল जब কংগ্রেস। मैंने 9 तृणमूल আগস্ট कांग्रेस ज्वाइन किया 1999 में, ডক্টর নীতিশ সেনগুপ্ত এনডিএর প্রার্থী ছিলেন, তাকে কাঁথি থেকে জিতানোতে আমাদের ভূমিকা ছিল না। এই तब মাঠে एनडीए की प्रार्थी कांची लोकसभा सीट से उनको जिताने का दायित्व मेरे ऊपर दिया गया था तृणमूल कांग्रेस की ओर से। উদ্দেশ্যটা কি? যে অধিকারীদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি এবারেও দ্বিতীয় হবেন, প্রথম হতে পারবেন না। প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি হবে। मैं ये फिर से कह देता हूँ कि इस बार के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन के पश्चिम बंगाल में उभरेगी। तृणमूल पहली नहीं हो पाएगी, तृणमूल को दूसरे नंबर पे आना पड़ेगा। আপনি বলুন তো মাকে, যিনি গর্ভধারিণী, যিনি জন্ম দিয়েছেন মা, আমার মায়ের নাম গায়ত্রী অধিকারী, তিনি আমার মা, অন্য কেউ আমার মা না। আরেকজনকে মা, আরেকজন মা বিবেকানন্দ বলে গেছেন। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভগিনী নিবেদিতা একটা বই লিখে গেছিলেন, তার নাম দা মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। সেই বইতে ভগিনী নিবেদিতা বলছেন, দ্য কুইন অফ অ্যাডোরেশন ওয়াজ হিজ মাদারল্যান্ড, অর্থাৎ ভারত মাতা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি स्वामी विवेकानंद ने खुद ये बोल चुके हैं कि भारत माता देश का माँ हमारा माँ है। পারবো না। আজকে আমি পরিশেষে বলবো, কেন্দ্রীয় मैं अपने সরকারের माँ को माँ कह सकता हूँ, किसी और के माँ को রাজ্যে नहीं চালু कह না सकता। করা। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচিগুলোকে নাম केंद्र পাল্টে के দেওয়া। जितने भी আর যে ভারতবর্ষ, पॉलिसीज যে हैं, जितने भी বাংলা, कर्मसूची কৃষ্টি हैं, সংস্কৃতির उनको জায়গা, पश्चिम बंगाल के নানা लोगों को ভাষা, उनसे নানা वंचित किया जा रहा है। বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। সেই বাংলায় অমিত শাহকে বহিরাগত বলছে, কৈলাস বিজয়বর্গীকে বহিরাগত বলছে, इस बंगाल के धरती में अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय बाहरी कहा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली हैं। यही हमारी आइडियोलॉजी है। मैं ये चाहता हूँ कि कोलकाता और दिल्ली में दोनों ही जगह पर एक ही पार्टी की सरकार हो, नहीं तो बंगाल को बचाना मुश्किल है। নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। अगर तृणमूल के करप्शन से बंगाल को बचाना है तो बंगाल को नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपना जरूरी है। আর তৃণমূল কংগ্রেসকে বলি, ভাবছো হবে তুমি যা চাও, জগৎটাকে তুমি নাচাও, দেখবি হঠাৎ নয়ন মেলে 21-এর ভোটে তোমরা যেটা চাও না সেটাই হবে।
কালকে তৃণমূলের এক পুরনো मैं বন্ধু तृणमूल कांग्रेस को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, লোকসভা নির্বাচনের আগে 2021 के चुनाव में जो वो नहीं चाहते वही होने वाला है। স্লোগান দিয়েছিলাম সেইটা পাঠিয়েছেন আমাকে। আমি নিচে লিখলাম, বন্ধু আমি যখন যা করি নিষ্ঠার সঙ্গে করি, তৃণমূলের কর্মী ছিলাম, তৃণমূলের হয়ে করেছি। আজকে আজকে কালকে যাচ্ছি মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে, সেখানে গিয়ে বলবো তোলাবাজ ভাইপো হটাও, তোলাবাজ ভাইপো হটাও। मैं तृणमूल से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब तृणमूल में था पूरे समर्थन के साथ तृणमूल के लिए काम किया है। आज जब मैं बीजेपी में हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि तोलाबाज भाइपों को हटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिंदाबाद, আমার বড় ভাই দাদা মাননীয় অমিত শাহজি জিন্দাবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। জয়নিং এর লিস্টে একটা নাম ছাড়া পড়ে গেছিল, বাঁকুড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার কার্যকারী সভাপতি জয়ন্ত মিত্র মহাশয়, তিনিও আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন। এরপরে যাকে শোনার জন্যে আপনারা पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह की ये रैली, मंच पर मौजूद शुभेंदु अधिकारी जो कि अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं, और अपने धुआंधार जबरदस्त भाषण में उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के लिए मैं बीजेपी में आया। अमित शाह ने, बीजेपी ने मेरा ध्यान रखा और ममता बनर्जी को कीमत चुकानी पड़ेगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब बीजेपी की लहर है, अब हम सब पहले भारतीय हैं फिर बंगाली हैं। अमित शाह को कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी कहा जाता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई आप लोगों की ऐसे बोलते हैं भारत माता की? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, मेरे मित्र और पार्टी के महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जी, हमारे नेता राहुल सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी जी, ज्योतिर्मय महतो जी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, सौमित्र खान जी, हमारे राज्यसभा के सांसद स्वपन दादा, श्रीमती भारती घोष जी, श्री सन्याल दत्ता जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टियों से, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, सभी से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिलर, जिला अध्यक्ष, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महान भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही भूमि है जहां इसी क्षेत्र में महान शिक्षा शास्त्री हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं।
ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। उनके जज्बे की कल्पना करिए, 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान देता है। और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदीराम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी। यही खुदीराम बोस की ये भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, पूर्व सांसद सतीश सामंत और हमारे जनसंघ के पूर्व सांसद दुर्गाचरण बनर्जी को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं,
वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। मित्रों, ढेर सारी योजनाएं। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर कर आया। मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। मैंने बोला, एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें। मित्रों, बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और आज सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि आपने वादा किया था बंगाल के विकास का। बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं। इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। मित्रों, अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मित्रों, यहां पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे बच्चू बेरा को मार दिया, जगदल से मिलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया, कूच बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया, झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया, कांठी से शेख अजहर को मार दिया, बीरभूम से शंकरी बागड़ी को मार दिया, बिसरुपुर से गोपाल चंद्र पाल को मार दिया और पुरुलिया से शिशुपाल सोशीस को मार दिया। कितने लोगों को मारोगे? ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। मुझे बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए, आवाज बंगाल की जनता की आवाज है। मित्रों,
मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने, बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने, बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, इसको बंद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। ये सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम करना है। आज कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। शाह ने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि हम अब तैयार हैं, आप 5 साल बीजेपी को मौका दीजिए, हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की अपील की और अमित शाह ने कहा, एक सांसद, 9 विधायक और कई सारे टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता हमारे साथ शामिल हुए हैं और अब ममता दीदी को यह साफ संदेश है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन था अमित शाह का। एक शक्ति प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की और अमित शाह से पहले उन्होंने जमकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कम्युनिस्टों के 27 साल के शासन को जिस तरह से आपने उखाड़ फेंका है, उसी तरह से ममता के शासन को भी आप उखाड़ फेंकिए और बीजेपी को मौका दीजिए। तो ये 2 दिन के दौरे पर जब अमित शाह पहुंचे तो वो आज मिदनापुर में ये सभा का सबको इंतजार था कि अमित शाह क्या कहते हैं। जमकर गरजे ममता सरकार पर। ममता सरकार को उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि बीजेपी अब बंगाल में आ चुकी है और अब आप हमें मौका दीजिए। बंगाल की जनता से अपील की मिदनापुर की इस रैली से अमित शाह ने और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई हैं, 6,000 रुपए जो किसानों के खाते में जाते हैं, वो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहे हैं। तो आप हमें मौका दीजिए, हम किसानों को वो फायदा पहुंचाएंगे। और ये भी कहा कि अब ये तमाम जो नेता हैं, भले वो टीएमसी के हों, वाम दलों के हों या कांग्रेस के हों, अब वो सब बीजेपी में आ चुके हैं। एक बार हम आपको सुनवाते हैं। या पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे बच्चू बेरा को मार दिया,
जगदल से मिलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया, कूच बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया, झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया, कांठी से शेख अजहर को मार दिया, बीरभूम से शंकरी बागड़ी को मार दिया, बिसरुपुर से गोपाल चंद्र पाल को मार दिया और पुरुलिया से शिशुपाल सोशीस को मार दिया। कितने लोगों को मालूम? ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। मित्रों, मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके हो। जमकर बरसे हैं अमित शाह और ये कहा कि अब ममता टीएमसी को उखाड़ फेंको, बंगाल